पिता साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने पर प्रसन्न यश युधिष्ठिर को उनकी किसी एक प्रिय भाई को जीवन देने का वरदान देते हैं। राजन वरदात्रेषु यम एकं जीवमिच्छसि सः जीवेत्। नकुलो जीवेत् इति ममेच्छास्ति। ते भीमसेनः प्रियः अयम् अर्जुनः वः परायणः तत्कस्मात् राजन् साधवं नकुलं जीवमिच्छसि। यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नास्ति वेत्तयोः। माद्रेभ्यः सममिच्छामि नकुलो यक्षः जीवतु। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न यश सभी अच्छे पांडवों को जीवन दान दे देते हैं। तथास्तु। आयुष्मान भवत्। Looks much more beautiful. Poems do just that to good thoughts. Poems bring out the soul of such thoughts in a manner that is highly penetrating in the face and yet very easy to the mind. The title of the poem is "A Girl is Special." A girl is good, a girl is good. She makes her life so enlightened. She loves to play, she loves to sing. She is happy in everything. She helps her mom, she helps her dad. She makes them smile when they are sad. She works hard and loves to learn. For a good mom, she always Poem on Girl's Night. My poem's title is God's Beautiful Creature. To the world wide, to the world wide, I want to walk, I want to run. In the street, from street to street, without any fear of girl-child abuse. Today I'm going to recite a poem on culture. The title of the poem is She Blooms Unseen. Today my poem stresses on the fact that a girl is capable of doing everything in this world, so we should allow her to bloom. In the quiet corners of the earth she grows, a spark of light where no one knows. With dreams stuck deep in silent eyes, she paints a road across the sky. Girl Child. The title of my poem is Save the Girl Child. A girl is peaceful, pure and bright. She makes the world so full of light. Let her live, let her dream. Her smile will make the future gleam. I am a girl. This poem expresses how girl child is important for humanity. I am a girl. Watch me go. See me standing up and right. I am a woman, origin of a child. See me caring day and night. God could not be everywhere, so I am born to help him here. A mother, a sister, a daughter, a wife. See me caring all my life. My topic is ear apples or a broom. Ear is when we use it carefully, it is a broom. When we will not care to use it carefully, it And my topic is, if I were a bird. If I were a bird, I would fly high in the sky. I would invite my bird friends and play all day. I would ride the aeroplane ride and enjoy the ride. On the topic, my idea of an ideal school. My ideal school would be, there would be a large playground in which my and my friends can play together. They would be use smart technologies, smart rooms to learn new things. Instead of having beds, there would be smart tablets to store our assignments. Mr. Shivanand, today I am here to speak on a topic that is the bird I want. I want a world with no poverty, no hunger. Everyone will live without struggling, and there will be no poverty. Everyone will live together, and also there will be no wars, no fighting in the environment. Yes, the word is financially.
कभी कभी भी मिलते हैं आपको मेरा और उसका परीक्षा का जवाब हमें ऐसे कक्षा द्वारा बताया है। आप सभी ध्यान सुनिए और बदली ऑनलाइन हो गया रे जमाना, ऑनलाइन हो गया रे जमाना, कितना गजब का है ये अफसाना। सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया, इंसान भी बेचारा इसके काबू में आ गया। बच्चों की पढ़ाई भी हो गई है गजब, बच्चों की पढ़ाई भी हो गई है गजब। गूगल से देखकर उत्तर देते हैं अलग, मोबाइल पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, शिकवे भी ऑनलाइन मिटाए जा रहे हैं। मीडिया पे चले थोड़ी बातें दिन भरे, पर घंटे बीते क्या तारे माँ, दादा विलियम नाम के बेकर रेखा, सेल्फी आई दिन रात, हाई टूटर साथ साथ, लड़ाई हो रही है हर बात पे, एक हलचल हर इस बात पे। आई बड़ी निराली, हाथी उड़ता देखो डाली, सबने मानी बिना विचारों फोटोशॉप की ये तस्वीर प्यारी। फिर आई एक खबर, शेर बोला मैं हूँ शहर, सबने माना हाँ हाँ हाँ, तरबूज खाए खरगोश का बच्चा और झूठी थी एक हार। पहले थे हम मिलते जुलते, अब कसम उठा खींचते, नमस्ते की जगह देते इमोजी, असली बातें तो बस भूलें। खाना सामने पड़ा, पर आंखें में स्क्रीन पर अड़ी, सब्जी में नमक कम, पर वीडियो कॉल है जरूरी। दोस्तों से मिलना जुलना सब हुआ है बंद, दोस्तों से मिलना जुलना सब हुआ पढ़ने आया, मन मेरा बड़ा घबराया, जब मैंने पुस्तक को उठाया, देखा मेरा फिर चलाया। इंग्लिश ने मुझे बहुत डराया, बाबा मैंने पेज पलटाया, मैं पुस्तक पढ़ने को उठाया, चैप्टर कोई समझ न आया। सकता पास नहीं। वो प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर मैं उत्तर दूं? तू लिखने जो तेरी मर्जी, ये प्रश्न पत्र है टपा। तूने पूछे वही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों से तुमने ये प्रश्न लिखे, वे हाथ तुम्हारे रुके नहीं। फिर आँख मूंद कर बैठ गया, भगवान दया करते, इन प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में पड़ते। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं भूल रहा हूँ तो करते हो भगवान सुना, सब कठिन भक्तों की सहाय। तुम करते हो भगवान सुना, सब कठिन भक्तों की सहाय। फिर मैंने भी इतिहास उठाया, एक पुस्तक दिया गलत पाया, सच की ओर मुंह घुमाया, H2O को ऑटोमेट बनाया, फिर प्यार हिंदी कराया, सिलेबस देखकर सिर झुकाया, साल भर न पढ़ने पर मैं पछताया, समय का मैं तभी समझ में आया। एक दिन आया नोटिस भारी, कल से होगी परीक्षा जारी, सबके चेहरे उतरे जैसे पकड़े गए हो चोरी करते पैसे। रवि बोला अब क्या होगा, बुक्स को मैंने कभी ना खोला। सीमा बोली घबराओ मत, बनकर घुटना वही कर, परीक्षा में सबने पसीना छोड़ा, किसी ने बनना किसी ने टोपी ओढ़ा। मैडम बोली बेटा क्या कर रहे हो? बस मैडम जीवन का अनुभव कह रहे हैं। घंटी बजी, कॉपी गई, सबके चेहरे चमक गए, पर जब रिजल्ट आया सामने, सबके सपने गए थे। रवि थे सीमा की डाउन, मम्मी बोली अब नहीं हो, फिर सबने माना एक बात, मेहनत ही है सबसे बड़ी सौगात। मेरे प्रिय साथी, सुप्रभात। मैं प्रज्ञा शर्मा आज जिस विषय की पक्षिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वह विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए वरदान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह वह तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और काम करने की क्षमता देती है। एआई ने हमारे जीवन को आसान और स्मार्ट बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए एक वरदान है। इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, आज एआई का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। अपने आप चलने वाले वाहन जैसे टेस्ला कार से लेकर सिरी और अलेक्सा जैसे ध्वनि साइबर तक, जहाँ यह तकनीक एक वरदान है,
वहीं यदि नियंत्रण से घात हो जाए तो एक भयंकर अभिशाप बन सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सोचिए जरा, जहाँ इंसानों को आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी भी काम को करने में घंटों लग जाते हैं, वहाँ AI सेकंड में जवाब दे देता है। डॉक्टर अब बीमारियों का इलाज पहले से बेहतर और तेजी से कर पा रहे हैं। नौकरियां भी खो रहे हैं, लोग अब मेहनत कम करने लगे हैं और सोचने की शक्ति घट रही है। अगर हर काम AI करेगा तो इंसान क्या करेंगे? मशीनों में दिल और भावना नहीं होती, वह प्यार या दुख नहीं समझ सकती। इस तरह अगर हम मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वह हमारे लिए नियंत्रण बनने लगेगी। फायदे इस विषय के पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य की तरह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और कार्य कर सकता है। AI ने हमारी जिंदगी को और भी आसान बना दिया है। AI हमारी जरूरतों को पूरा करने में और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं। AI के कुछ फायदे इस प्रकार के भी हैं, जैसे काम का ऑटोमेशन। AI के कुछ ऐप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कैनवा से बार-बार काम ऑटोमेट हो जाते हैं, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा का दुरुपयोग भी कर सकती है, जिससे निष्ठा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवीय भावना नहीं होती, न करुणा, न नैतिकता, न संवेदना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी मदद के लिए, हम पर शासन करने के लिए नहीं। अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए वरदान है। इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साथियों, कोई भी तकनीक तभी एक वरदान होती है जब वह मानव के नियंत्रण में हो। जैसे ही वह नियंत्रण से बाहर आती है, वह वरदान से अभिशाप बन जाती है और यही स्थिति आजकल AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ बनती जा रही है। AI से मशीनें इंसानों जैसे निर्णय लेने लगी है, लेकिन सोचिए, क्या मशीनें कभी मानवीय संवेदना, नैतिकता और करुणा को समझ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सरिता श्रीवास्तव। मुझे भारत की रॉकेट वुमन के नाम से जाना जाता है। कल्पनाओं में जल्दी मेरी दिलचस्पी हमेशा अंतरिक्ष में रही है। 1997 में मैंने इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। मेरे करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब मैंने भारत के सबसे पहले मंगल मिशन मंगलयान में उप संचालक निदेशक की भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मैं पुनीत कुंभम, एक ऐसी स्त्री जिसने शब्दों के साथ जीना और जानना सीखा। 1968 में दिल्ली में जन्मी। पहले दिल्ली के ब्रिटिश विद्यालय से हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई की और पत्रकारिता से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। तब भारत टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हुए मैंने समाज और स्त्री से जुड़े मुद्दों को सीखा। मेरा जन्म 3 मई 1989 गुजरात के उन्नाव में हुआ था। बचपन से ही मुझे चीजों को नए नजरिए से देखने की आदत थी। जहाँ लोग चीजों को बेकार समझ के चीजें फेंक देते थे, वहीं मुझे उनमें कुछ नए बनाने की संभावना थी। मेरा नाम पुनीत होगा है। मेरा जन्म 21 नवंबर 1983 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही मुझे कहानियां सुनाना और कैमरे के पीछे दुनिया बहुत पसंद है। लेकिन जब मैंने फिल्मों के काम करने की सोची तो कई लोगों ने कहा, ये लड़की क्या कर पाएगी? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने छोटी-छोटी फिल्में बनाई, संघर्ष किया और फिर वो पल आया जब मैंने बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला। मेरा नाम सुधांशु शुक्ला है। हाल ही में आप सभी ने मेरा नाम सुना होगा। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन पर मैं अंतरिक्ष में गया था। 26 जून 2025 को ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में मैंने डॉकिंग की। मैं भारतीय गायक, संगीतकार और एक कंपोजर। संगीत मेरे जीवन की पहचान है। बचपन से ही मैंने गायन सीखा और आज मैं अलग-अलग तरह के संगीत जैसे शास्त्रीय, पॉप और फिल्मी सब में काम करता हूँ। आप सब मुझे शंकर एहसान बोले के समूह से भी जानते हैं। हम सब ने मिलकर कई हिट गाने दिए हैं, जैसे कल होना हो, दिल चाहता है और रॉक पॉप। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और मैं भारत का शतरंज खिलाड़ी हूँ। बचपन से ही
मुझे शतरंज खेलने का शौक था। मैंने नगर और मेहनत से कई प्रतियोगिताएं जीती। 2024 में मैंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। संभवामि
ये गेम तो और भी बढ़िया चल रहा है। मेरे कुछ और बेहतर से जिन्हें बांधने के लिए तो क्लिक करना होगा। अरे वाह, इससे तो मैं गेम का राजा बन जाऊंगा। Click on the link. ₹1,000 deducted from the bank account. अरे ये क्या हो गया? मैंने अपनी मम्मी की कमाई में सारे पैसे उड़ा दिए। थैंक यू बेटा। मेरा OTP तेरा होगा। अब सब मेरा। ये तो है फिशिंग। लूट रियल। अपनी सोच में खोए थे, ऑनलाइन गेम्स में डूबे थे, पर असली दुनिया रो रही थी, जिम्मेदारी खो रही थी। Spam call IRL load. Ready. Click किया link. Bank balance ready. Email damage of fraud. Details दे दिया हो गया fraud. मैसेज में था एक फेक रिवॉर्ड। केस मिला के हुआ कार्ड डिस्कार्ड। OTP गया फोन फ्रीज हो गया। जब वो शायद सब कुछ लीन हो गया। स्कैम के सोल्जर्स फोन के नाम पे बच रहा बेटा। सोच से काम ले। चलो यह शिकार ढूंढते हैं। ये हंसी किस बात की? इंसान के दिमाग का यूज करते हो और कहते हो मैं बेस्ट हूँ। ये सब मिलकर मीडिया का एक सर्कस बना देते हैं, जिसमें फंसकर हम सब जोकर बन जाते हैं। सेंसी का मतलब है स्मार्टनेस। किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो और उसे स्मार्टनेस कहते हो। नहीं, स्टुपिडिटी है ये। बस अब ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। अब समय आ गया है डिजिटल सावधानी का। हर मैसेज पे भरोसा करते हो, हर लिंक पे क्लिक करते हो। आज से एक रूल याद रखो, सोचो समझो तब चुनो। अब ना चाहिए फेक फेम, ना गेमिंग के सपने। मुझे तो चाहिए बस असली जिंदगी, मेरी सोच, मेरा गोल। जब तुम सब जागरूक हो जाओगे, मैं अपने आप उठ बैठ जाऊंगा। फैशन का है ये जलवा, पर अंदर से सब है हलवा। लाइक्स के चक्कर में गुम हो गया, असली जीवन से डाउन हो गया। स्नैप हो, ग्राम हो, यूट्यूब का बवाल, दिखावे के चक्कर में हो गया बेहाल। #फिल्टर वर्चुअल ड्रामा, दिल की दुनिया बन गई जमाना। तो सोचो जरा, समझो ये किस्सा, ना बनो एडिक्ट, ना करो ये नशा। And good morning to all of you, because technically I think it's still good morning. Now, first of all, though you've already clapped a lot, but one final round of applause for the entire middle departments, the HOTs and team of teachers, participants, presenters. The winners have already been applauded a lot. I would like to talk about the other lot that failed to win. You see, the title of your function today is, rather the literary activity today is, Echoes of Eloquence. Now today, some of you might have been very eloquent, some of you have missed the target, might have forgotten, fumbled, bust up, but that's okay. It's okay to make mistakes. It's okay to fumble. The very purpose behind such in-house activities is to give you courage and confidence to face an audience, to help you overcome stage fright. So, your stumble today should not be a deterrent in your future participation. Learn your lesson